وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حفظ کلاس کس طرح پڑھائیں اس موضوع پر بات کریں گے۔ حفظ کلاس جیسے ہم جانتے ہیں کہ 4 جز ہے: ناظرہ، سبق، سبق کا پارہ اور دور۔ نمبر 1، ناظرہ۔ سبق کو یاد کرانے سے پہلے ناظرہ کی تیاری اچھی طرح کرانا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ہفتے میں ایک دن جمعرات کا دن ہے، اس دن طلبہ کا سبق سننے کے بعد 2-3 گھنٹے ان کا ناظرہ سنا جائے۔ طلبہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر ایک رکوع کر کر یاد کریں گے۔ ایک رکوع کو 3 بار پڑھیں گے یا 2 بار پڑھیں گے، اور چوتھی بار اپنے استاد کو سنائیں گے۔ استاد کو ہر ایک طالب علم کا ناظرہ انفرادی طور پر سننا ہے، یعنی ایک کر کر سننا ہے۔ اس سننے کے دوران جو غلطیاں ہوں اسے طالب علم کو 5 بار یا 10 بار استاد کے پاس سے اٹھنے سے پہلے ہی پکا کر کے اٹھنا ہے۔ اس طرح ایک طالب علم رکوع یاد کرتا جائے گا 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اور استاد کو سنائے گا، اور استاد جو غلطی نکالے اسے استاد کے پاس سے اٹھنے سے پہلے 3 یا 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر پھر اسے صحیح کر کر ہی اٹھے گا۔ اسی طرح پورے ہفتے کے ناظرے کی اس کو تیاری کرنا ہے۔ مثلا کوئی ایک طالب علم روز کا 1 صفحہ یاد کرتا ہے تو ہفتے کے اس کے 6 صفحے ہوئے۔ ان اگلے 6 صفحوں کا ناظرہ اسے جمعرات کے دن تیار کرنا ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں، ناظرہ جتنا پختہ ہوگا طالب علم کو سبق کے یاد کرنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ اس لیے استاد پورا زور لگا دیں اور ناظرہ کو پختہ سے پختہ بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، سبق۔ ہفتے میں ایک دن ناظرہ کے صحیح کرانے کے بعد استاد کو جو سبق اسے روزانہ یاد کرنا ہے اسے انفرادی طور پر سننا ہے، اور جو غلطیاں آئے اس کے نیچے لکیر لگانا ہے، اور طالب علم کو اٹھنے سے پہلے، استاد کے پاس سے اٹھنے سے پہلے انہیں 5 بار 10 بار پڑھوانا ہے تاکہ وہ غلطی صحیح ہو جائے۔ اس کے بعد ہی اسے آگے سبق یاد کروانا ہے۔ ایک بڑی غلطی، مدارس میں عام طور پر مغرب کے بعد کا وقت وہ سبق کے یاد کرنے کے لیے متعین ہوتا ہے، اور طلبہ یہ سوچتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو سبق یاد کیا جاتا ہے وہی یاد رہتا ہے، اور باقی کے اوقات میں جو سبق یاد کیا جاتا ہے وہ یاد نہیں رہتا، جبکہ یہ سوچنا غلط ہے۔ اگر کوئی طالب علم 1 گھنٹے میں 1 صفحہ یاد کرتا ہے تو وہ دوسرے اوقات میں وقت نکال کر روزانہ کا 2-2.5 صفحہ آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ پر ایک بات کا دھیان ضرور رکھیں، سبق زیادہ یاد کرنے سے دور اور سبق کے پارے میں اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ان تینوں کو بیلنس طور پر لے کر جانا ہے۔ طالب علم چاہے 1 صفحہ یاد کرے، 1.5 صفحہ یاد کرے، 2 صفحہ یاد کرے یا 3 صفحے یاد کرے، جتنا بھی یاد کرے، لیکن اس کے دور پر بھی خاص دھیان رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سبق آگے یاد ہوتا جائے اور پیچھے کا دور وہ بھولتا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ترتیب انشاءاللہ مفید ہوگی۔ اس عاجز کی یہ تحقیق ہے کہ عام طور پر طالب علم ان 3 وجوہات کی بنا پر سبق کچا لاتا ہے۔ نمبر 1، ناظرے کا کچا ہونا۔ نمبر 2، سبق کے یاد کرنے کی کوئی مناسب ترتیب نہ ہونا، اور نمبر 3، ذہن کا کچا ہونا۔ اس عاجز نے قرآن کریم کس طرح یاد کرنا ہے، سبق کس طرح یاد کرنا ہے، اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ کیونکہ سبق ہی حفظ قرآن کی بنیاد ہے، اس لیے استاد مغرب کے بعد طلبہ پر خوب نگرانی رکھیں۔ استاد اپنے گدے کے آس پاس ان طلبہ کو بٹھائیں جن کا ناظرہ کچا ہے، اسی طرح ان طلبہ کو بٹھائیں جو زیادہ چھوٹے ہیں اور اپنے طور پر زیادہ دھیان دے کر نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے طلبہ کو اپنے گدے کے آس پاس بٹھائیں۔ ہاں، ایک بار پھر مغرب کے بعد ان کا ناظرہ ضرور سن لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سبق کے یاد کرنے کے دوران کوئی بھی لفظ غلط یاد نہیں ہوگا۔ جیسے ہم جانتے ہیں سبق کی غلطی کو دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایسے طلبہ جن کا ناظرہ زیادہ کچا ہے انہیں آپ اپنے پاس بٹھائیں، اور مغرب کے بعد بھی ایک بار پھر ان کا ناظرہ سن لیں۔ اور جب طلبہ سبق یاد کریں اس وقت ان کے پڑھنے پر بھی دھیان رکھیں تاکہ کوئی لفظ غلط یاد نہ کر لیں۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، طلبہ کی نیند کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر طلبہ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو انہیں سبق کے یاد کرنے میں دشواری ہوگی۔ اس لیے
नींद को बैलेंस में रखते हुए चलना है। खुसूसन जो तलबा स्कूल के साथ हिफ्ज कर रहे हैं, आमतौर पर होता यह है कि उनको उनकी नींद मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से वो सबक अच्छी तरह याद नहीं कर पाते। इसलिए खास तौर पर यह ध्यान रखा जाए कि तलबा की नींद मुकम्मल हो जाए ताकि सबक के याद करने में उन्हें आसानी हो। चाहे सबक हो, सबक का पारा हो या दौर, एक कायदा याद रखना है, एक बार सबक काबू में आ जाए, एक बार दौर काबू में आ जाए, एक बार सबक का पारा काबू में आ जाए, उसे छोड़ना नहीं है, उसका ज्यादा से ज्यादा दौर कर लेना है। उसकी तरतीब ये आजिज ये बताता है कि तलबा उस्ताद को सबक के सुनाने के बाद इनफिरादी तौर पर नमाज में उस सबक को 3-3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ ले ताकि सबक पुख्ता हो जाए। इसी तरह दौर है, दौर को उस्ताद को सुना देने के बाद तालिब इल्म इनफिरादी तौर पर, अगर उस्ताद इजाजत दे, उस्ताद अगर क्लास में यह तरतीब बना दे, क्लास ही में दौर के सुना देने के बाद उस तालिब इल्म को अपने दौर को नमाज में एक बार पढ़ लेना है। इसी तरह सबक का पारा उस्ताद को सुना देने के बाद तालिब इल्म को इनफिरादी तौर पर, अगर उस्ताद इजाजत दे तो क्लास ही में नमाज की हालत में उस सबक के पारे को 1 बार, 3 बार, 5 बार, इतनी सहूलत से हो पढ़ लिया जाए। खुलासा ये कि सबक का पारा या दौर या सबक वो एक बार काबू में आ जाए, उसे छोड़ना नहीं है, उसका इतना ज्यादा दौर कर लेना है ताकि बीच में अगर गैप हो जाए, एक 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते का या महीने का, तो उसको याद करने में आसानी रहे, उसे नए सिरे से याद करने की जरूरत न पड़े। एक अहम बात मैं बताता चलूं, सबक को सुनते वक्त अगर तालिब इल्म की 1 से ज्यादा गलती है तब भी उसे सुन लेना है और जहां जहां गलती हो रही है वहां पर लकीर लगा देना है, और उन गलतियों को, अगर कोई लफ्जी गलती है तो उन्हें 50 बार पढ़वाना है, अगर कोई अटक है तो उन्हें 20 बार पढ़वाना है। तालिब इल्म को सबक के कच्चा लाने पर सजा नहीं देनी है, लकीर लगाकर उसे वापस भेज देना है। तालिब इल्म अपनी जगह पर जाकर उन गलतियों को सही करेगा, सही करके फिर से पूरे सबक को सुनाएगा। इसमें तालिब इल्म के लिए भी आसानी रहेगी और उस्ताद के लिए भी आसानी रहेगी। अगर हम सबक के कच्चा लाने पर किसी तालिब इल्म को सजा देते हैं, इससे उसके सबक के याद करने में दिक्कत होगी और इसी तरह सबक के पारे और दौर के याद करने में दिक्कत होगी। ये गेम पूरा का पूरा जो है जहन का है। आदमी का जहन जितना कंटेंटेड रहेगा, आदमी का जहन जितना शांत रहेगा, वो उतना अच्छी तरह सबक को याद कर पाएगा। इसलिए कोई तालिब इल्म अगर सबक गलत लाए, सबक में ज्यादा गलतियां लाए, उन गलतियों के नीचे लकीर कर दी जाए और तालिब इल्म अपनी जगह पर जाकर उन गलतियों को सही कर दोबारा सुना देगा। इसका फायदा यह होगा कि तालिब इल्म, इस आजिज का तजुर्बा रहा है, जब कभी भी किसी तालिब इल्म को गलतियों पर वापस भेजा जाता है और उसे सजा नहीं दी जाती है तो फौरन वो 10-15 मिनट में फिर से सबक को याद करके आसानी से आ जाता है और वो फिर से पूरे सबक को सुना देता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कोई तालिब इल्म को सबक याद नहीं होता, इस मौके पर हमें ज्यादा सबक में उलझना नहीं है, कुछ मुद्दत के लिए सबक को पोस्टपोन कर दीजिए और उस तालिब इल्म को सबक के पारे की तैयारी में लगा दीजिए या दौर की तैयारी में लगा दीजिए और जोहर के बाद या सबक के पारे के बाद उसके सबक को फिर से सुन लिया जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस गैप की वजह से वो सबक अच्छी तरह सुना पाए। सबक का पारा सिर्फ 3 रुकू है, इसमें उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए आसानी है। तालिब इल्म सबक के पारे के तौर पर 3 रुकू की तैयारी करेगा और उस्ताद को सुनाएगा। उस्ताद को सुनाने के बाद मुमकिन हो तो 3 बार उसे नमाज में पढ़ा लिया जाए। अच्छा, ये तो 3 रुकू हुए। इसके अलावा उस्ताद को एक काम और करना है, वो ये तालिब इल्म का रोजाना आधा पारा जो सबक के पारे से मुत्तसिल है उसे सुनना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पहले पारे का 11वां रुकू याद कर रहा है तो उसे पहले पारे का 9वां, 10वां और 11वां रुकू जो है सबक के पारे में सुनाना है और बाकी पिछला जो आधा पारा है उसे रोजाना दौर के तौर पर सुनाना है। और यह तरतीब कहां तक करनी है? जब तक उसका पहला पारे का दूसरा निस्फ पूरा ना हो जाए तब तक उसे यही तरतीब करना है, यानी रोजाना उसे 3 रुकू सबक के पारे में सुनाना है और आधा पारा उसे सबक के पारे के दौर के तौर पर सुनाना है। ये
आधा पारा जो तालिब रोजाना सुना रहा है, इसके रोजाना तैयारी करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि रोजाना एक ही पारा वो सुना रहा है और इसीलिए उसे क्या करना है, उसे बिना तैयारी के ही सुनाना है। अगर कोई तालिब इल्म 15 दिन में आधा पारा याद करता है तो उसके कुल 15 दौर हुए आधे पारे के, तो इससे सबक जो अभी अभी ताजा ताजा याद हुआ है उसका एक पारे तक पहुंचने तक वो पूरा पारा पुख्ता हो जाएगा। नंबर 4, दौर को याद करने की आसान तरतीब यह है, तालिब इल्म रोजाना पौ पारा आधा पारा उस्ताद को दौर सुनाने के बाद इनफिरादी तौर पर नमाज की हालत में उस दौर को 2 बार 3 बार पढ़ लें। इससे उस दौर में पुख्तगी आ जाएगी। जब अगली बार उसका नंबर आएगा तो उन्हें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दौर के दौरान जिन गलतियों पर लकीर लगा दी जाए उन गलतियों को तालिब इल्म से जरूर पक्का करवाना है। आमतौर पर होता यह है कि उस्ताद अपने तौर पर तो गलतियों के नीचे लकीर लगा देते हैं, लेकिन तालिब इल्म अपनी जगह पर जाकर उन गलतियों को सही नहीं करते, जिसकी वजह से वो गलतियां अगले दौर में चलती रहती है। उस्ताद को दौर सुनाने के पीछे मकसद यही है कि हमें पता चल जाए कि हमारा कुरान कहां पर कच्चा है, और हमें जब पता लग गया कि कुरान कहां पर कच्चा है तो हमें उन जगहों को पक्का कर लेना है। इससे हमारा पूरा कुरान सही हो जाएगा। उम्मीद है ये जो 4 बातें मैंने आपको बताई है ये ज्यादा वाज़ेह हो चुकी है। हिफ्ज़ कुरान किस तरह करवाना है इस मौजू पर जो बात की गई है, अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे जरूर अपने दोस्तों और तलबा में जरूर इसे फैलाएं ताकि दूसरों का भी फायदा हो, और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने तलबा से भी इसकी गुजारिश करें। अस्सलामु अलैकुम।